بتائیں کہ PHA فیصل آباد کی آڈٹ رپورٹ میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف، اشتہاری فیس، NOCs فیس اور سرچارج کی وصولی میں بے ضابطگیاں، بل بورڈ اور اسکائی سائنس کی فیس میں 42,52,000 روپے کم وصول کیے گئے، جبکہ NOC فیس قیمت میں بھی 2,12,000 روپے کم وصول کیے گئے۔ 1,87,93,000 روپے کی ریکوری مؤثر نہ ہونے کی نشاندہی، 3,35,00,000 سے زائد کے چالانوں کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم، بعض چالان ڈپلیکیٹ ہونے کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ آؤٹ ڈور یا ایڈورٹائزمنٹ اور ٹھیکے میں 20,56,000 سرچارج وصول نہ کیا گیا۔ آؤٹ ڈور اشتہارات کا ٹھیکہ 16,16,00,000 روپے سے زائد میں دیا گیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تمام بقایا سرکاری واجبات فوری وصول کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ فیصل آباد ڈویژن میں گھی کے دام چھونے لگے آسمان، گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت میں 15 سے 20 روپے تک کا اضافہ۔ اول درجے کا گھی 600 روپے فی کلو تک جا پہنچا۔ اول درجے کا کوکنگ آئل 620 روپے فی لیٹر فروخت۔ درجہ دوم کا گھی 560 روپے سے بڑھ کر 570 روپے کلو ہو گیا۔ درجہ دوم کا کوکنگ آئل 580 سے بڑھ کر 590 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ تیسرے درجے کے گھی کی قیمت میں بھی 10 روپے تک کا اضافہ۔ تیسرے درجے کا گھی 490 روپے فی کلو ہو گیا۔ تیسرے درجے کا کوکنگ آئل 500 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ مزدور کے لیے 2 وقت کی روٹی مزید مشکل ہو گئی۔ تمام برانڈز کے گھی اور پکانے کے تیل کی قیمتوں میں تیزی آ گئی۔ مختلف برانڈز کی قیمتوں میں 10 روپے تک کا اضافہ، جبکہ ایک گریڈ کے مقامی برانڈز کی قیمتیں 580 روپے سے 590 روپے، جبکہ کراچی برانڈز کے گھی کی قیمت میں 10 روپے تک کا اضافہ۔ کراچی کے برانڈز اور مقامی برانڈز کے گھی کی قیمتوں میں فی کلو 10 روپے تک کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد سوم درجے کے گھی کی قیمت 475 روپے سے بڑھ کر 485 روپے کلو ہو گئی، جبکہ درجہ دوم کے گھی کی قیمت 530 روپے سے بڑھ کر 540 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ اسی طرح اے گریڈ کے مقامی برانڈز کی قیمتوں میں بھی 10 روپے فی کلو اضافہ ہوا، جس کے بعد اول درجے کے گھی کی قیمت 580 روپے سے بڑھ کر 590 روپے فی کلو ہو گئی۔ قیمتوں میں مسلسل اضافے سے شہریوں کو خصوصاً کم آمدن والے طبقے کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا۔ مختلف برانڈز کے گھی کی قیمتوں میں اضافہ۔ درجہ اول، دوم اور سوم کی گھی کی برانڈز کی قیمتوں میں 50 روپے فی ٹن اضافہ ہوا۔ گھی کی قیمتوں میں اضافے سے شدید پریشان ہے شہری، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ مختلف برانڈز کے گھی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ گھی کی قیمت میں 5 روپے فی کلو، جبکہ درجہ اول، دوم اور سوم کے گھی کی قیمتوں میں 50 روپے فی کارٹن تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث شہری پریشان، اوپن مارکیٹ میں مہنگا گھی خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز گھی کی قیمتیں بڑھنے سے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ حکومت فوری طور پر گھی کی بڑھتی قیمتوں کا نوٹس لے اور عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ دوسری جانب دکانداروں کے مطابق گھی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ مہنگائی کا نیا فار، عام آدمی کے لیے ہانڈی کو تڑکا لگانا بھی مشکل ہونے لگا۔ مختلف برانڈز کے گھی کی قیمت 10 روپے کلو تک مہنگی ہو گئی، جبکہ کرٹن کی قیمت میں بھی 100 سے 125 روپے تک کا اضافہ۔ چنیوٹ میں درجہ اول 120، درجہ دوم اور سوم 80 سے 100 روپے فی کی کارٹن بڑھا ہے، جبکہ مختلف برانڈز کے گھی کی قیمت تقریباً 10 روپے فی کلو بڑھی۔ صدر کریانہ ملک عرفان کہتے ہیں کہ کاروبار تباہ ہو چکے، مزدور کے ساتھ ساتھ کاروباری طبقہ بھی شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرے۔ فیصل آباد ڈویژن کے چاروں اضلاع میں سبزیوں، پھلوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں ہفتہ وار اتار چڑھاؤ ریکارڈ کیا گیا۔ سرکاری نرخوں اور مارکیٹ میں فروخت ہونے والی قیمتوں میں بھی نمایاں فرق سامنے آیا۔
फैसलाबाद में 7 रोज बाद आलू 2 रुपए कमी से 22 रुपए किलो पर बरकरार रहा। अदरक 325 रुपए के सरकारी नर्क के मुकाबले में मार्केट में 400 रुपए किलो फरोख्त हुआ। बैंगन 85 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि मार्केट में 100 रुपए किलो दस्तयाब है। भिंडी 40 रुपए महंगे होकर 180 रुपए मार्केट में 200 रुपए किलो। प्याज 150 रुपए मार्केट में 180 रुपए किलो। फूल गोभी 10 रुपए कमी से 160 रुपए मार्केट में 200 रुपए किलो। टमाटर 200 रुपए मार्केट में 250 रुपए किलो। टिंडे 30 रुपए इजाफे से 200 रुपए मार्केट में 250 रुपए किलो। सब्ज मिर्च 15 रुपए कमी से 85 रुपए मार्केट में 150 रुपए किलो। शिमला मिर्च 20 रुपए कमी से 270 रुपए मार्केट में 350 रुपए किलो। लहसुन 10 रुपए कमी से 340 रुपए मार्केट में 400 रुपए किलो। और धनिया 50 रुपए इजाफे से 250 रुपए मार्केट में 300 रुपए किलो फरोख्त हुआ। झंग में चिकन 504 रुपए फी किलो पर बरकरार रहा, जबकि फार्मी अंडे 29 रुपए सस्ते होकर 339 रुपए फी दर्जन हो गए। आलू फीका 5 रुपए कमी से 30 रुपए फी किलो। अदरक 15 रुपए कमी से 350 रुपए। प्याज 10 रुपए इजाफे से 160 रुपए और टमाटर 10 रुपए इजाफे से 210 रुपए फी किलो मुकर्रर हुआ। टमाटर मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता रहा। भिंडी 10 रुपए महंगी होकर 140 रुपए। शिमला मिर्च 60 रुपए कमी से 240 रुपए। लीमो 20 रुपए इजाफे से 200 रुपए। खजूर असील 80 रुपए कमी से 250 रुपए और आम देसी 20 रुपए इजाफे से 170 रुपए फी किलो मुकर्रर हुआ। चिन्योट में आलू 5 रुपए कमी से 30 रुपए फी किलो मुकर्रर हुआ, लेकिन मार्केट में 50 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज 160 रुपए मार्केट में 200 रुपए किलो। लहसुन चाइना 350 रुपए और अदरक 330 रुपए फी किलो बरकरार रहे। सब्ज मिर्च 5 रुपए कमी से 90 रुपए। बैंगन 90 रुपए और फूल गोभी 170 रुपए फी किलो पर बरकरार रहे। भिंडी 30 रुपए इजाफे से 180 रुपए। घिया कद्दू 20 रुपए इजाफे से 170 रुपए। घिया तोरी 90 रुपए। लीमो देसी 170 रुपए मार्केट में 200 रुपए किलो। शिमला मिर्च 20 रुपए कमी से 280 रुपए मार्केट में 300 रुपए किलो और अरबी 5 रुपए इजाफे से 85 रुपए फी किलो मुकर्रर हुई। तोबा टेक सिंह में प्याज 40 रुपए इजाफे से 160 रुपए फी किलो मुकर्रर हुआ। आलू 10 रुपए महंगा होकर 26 रुपए। टमाटर 20 रुपए इजाफे से 200 रुपए। लहसुन 30 रुपए इजाफे से 300 रुपए और लीमो 50 रुपए इजाफे से 300 रुपए फी किलो मुकर्रर हुआ। सब्ज मिर्च 10 रुपए कमी से 90 रुपए और फूल गोभी 50 रुपए इजाफे से 150 रुपए फी किलो फरोख्त हुई। नारियल 400 रुपए मार्केट में 430 रुपए। सेब काला किलो पहाड़ी 20 रुपए इजाफे से 380 रुपए फी किलो। केला 10 रुपए इजाफे से 200 रुपए फी दर्जन मुकर्रर हुआ। फैसलाबाद में कारोबारी मराकज पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। कारोबारी मराकज पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फैसलाबाद में एसएचओ और सिक्योरिटी अफसरान को कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। दुकानों, प्लाजों, स्नूकर क्लबों, पान शॉप, कबाड़खानों और दीगर कारोबारी मराकज पर सीसीटीवी कैमरों की तनसीब लाजमी होगी। गली मोहल्लों में कायम दुकानों पर भी कैमरे नस्ब करना होंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद सिक्योरिटी और जराइम की रोकथाम को मौसर बनाना है। सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का हुक्म सीपीओ तनवीर हुसैन ने जारी किया था। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। बुआना में अंजुमन ताजरा का इलेक्शन कल होगा। सदर की सीट पर बिलाल इलाही और जनरल सेक्रेटरी मियां रिजवान पप्पू उम्मीदवार। सुप्रीम अंजुमन ताजरा अमीन भट्ट ग्रुप की मुकम्मल हमायत हासिल। उम्मीदवारों का इलेक्शन जीत कर दुकानदारों की फलाह के लिए काम करने के अज़म का इजहार। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद शहर 8 बाजार जो हैं वो ताजरों की एक बड़ी जो है वो जगह समझी जाती है और बुआना बाजार में 4 साल के अरसे के बाद इलेक्शन होने जा रहा है। बुआना बाजार अंजुमन ताजरान के लिए सदर के लिए बिलाल इलाही जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल भाई, क्या मंशूर है आपका इलेक्शन इस जो 2026 हो रहा है इस हवाले से? इंशाल्लाह जी, दुकानदारों की जो भी मसाइल हैं, वापडा के मसाइल हैं, कॉरपोरेशन के मसाइल हैं, पैरा के मसाइल हैं, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम बतानी वसूल होने देंगे और दुकानदारों से मुशावरत के साथ इंशाल्लाह हर मामले को हल करेंगे। आप जनरल सेक्रेटरी के लिए मियां रिजवान साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो यही मकसद है, मैं इलेक्शन में भी इस तरह आया था कि जो बाजार के साथ जुल्म हो रहा है ना, दुकानदारों की इज्जत पर माल की जा रही है, मैं इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मदद की और दुकानदारों ने मेरा साथ दिया तो मैं पहले नंबर पर दुकानदारों की इज्जत का मुहाफ़िज़ बनूंगा और उनके मुताबिक जो उनके जायज़ मुतालबे हैं मैं उनके लिए शाना बिशाना हर जगह खड़ा रहूंगा। शाना बिशाना हर जगह खड़े होंगे। सिर्फ और सिर्फ मंशूर ये है कि दुकानदार की इज्जत बहाल करवानी है और किसी तरह से किसी भी सरकारी अदारे के आगे ब्लैकमेलिंग जो है वो इनका कहना है कि नहीं होने देंगे।
चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन भट्ट साहब क्या कहते हैं इस इलेक्शन के हवाले से? बड़ी गहमा गहमी है, जब से अमीन भट्ट ने नारा लगाया है बिलाल इलाही का, इलेक्शन का रुख बदल चुका है, क्या कहते हैं? शुक्रिया वजील भाई। पिछली रोज इलेक्शन हुआ तो मेरी हमदर्दी इसके साथ थी। उसके साथ जब टेनोर गुजरता गया तो उसकी शिकायत आनी शुरू हो गई, जिनकी शिकायत उसने नहीं की, मुझे दुकानदारों ने कहना शुरू कर दिया कि भट्ट साहब ये किस बदतमीज बंदे को आपने जिता दिया है, ये तो हमारे साथ मतलब गर्मी से बात करता है, बदतमीजी के साथ बात करता है। तो इसलिए मैं इलेक्शन में आया हूं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हक सच की फतह होगी, बदमाशी की फतह नहीं होगी। बिलाल लाई दो इधर बरादरी बड़ी है, एक शेख बरादरी बड़ी है, एक अराई बरादरी बड़ी है। एक मैंने बिलाल लाई जो शेख है इसको सदर के लिए मुंतखब किया है, और जो अराई बरादरी का जो हमारा मियां रजवान पप्पू है उसको मुंतखब किया है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर नमाज पढ़कर दुआ करके आएंगे कि या अल्लाह इस बाजार के लिए शराफत का बोलबाला करें। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने समझा कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि दुकानदारों के पुरजोर मुतालबे पर ये उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में लाए गए हैं, और ये जो भी कल फैसला होगा उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि दुकानदारों के हक में अच्छा फैसला है। जी फजील, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां रूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरी झंडे, नक्शे, नालैन पाक और दिगर सामान खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल पर घरों, मसाजिद और गली मोहल्लों को सजाएंगे। जश्न मिलाद मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। आपको यहां पर अपडेट करते हैं कि टोबा टेक्सिंग में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरी झंडे, नक्शे, नालैन पाक और दिगर सामान खरीदने में मसरूफ हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल पर घरों, मसाजिद और गली मोहल्लों को सजाएंगे। जश्न मिलाद मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। मजीद जानते हैं आलिम शेर से। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की आमद है। शहरी भरपूर तैयारियां जो हैं वो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से करते नज़र आ रहे हैं। शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर जहां स्टॉल्स लगे हैं, शहरियों का काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। शहरी अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए झंडे, नालैन पाक और मुख्तलिफ इकसाम के जो वो बैजीज हैं वो खरीदते नज़र आ रहे हैं। अपने घरों को, मस्जिदों को सजाने की तैयारियां कर रहे हैं। मैं इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ काफ़ी तादाद में शहरी मौजूद है। हम इनसे बात भी करते हैं, जानते भी हैं। भाई बताएगा 12 रबीउल अव्वल के लिए आपने क्या क्या तैयारी की और क्या किस चीज़ को सजाने जा रहे हैं? जी हम मस्जिद के लिए सामान लेने हैं, झंडे वगैरह और जो सजावट का सामान वगैरह वो लेने आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आज भी लेंगे और थोड़ी देर तक और भी दोस्त अहबाब आ रहे हैं साथ लेने के लिए, उनका वेट कर रहे हैं। और मस्जिद का सामान और हमारी गलियों का जो सजावट का सामान है वो लेने आ रहे हैं। बिल्कुल, मस्जिदों को सजाने के लिए शहरी सामान खरीदने पहुंचे हैं। मुख्तलिफ इकसाम के जो बैजीज हैं और नालैन पाक झंडे खरीदते नजर आ रहे हैं। अपने आका से, अपने नबी से मोहब्बत का भरपूर इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई बताएगा कि कितना आपकी सेल में इजाफा हुआ है जब से 12 रबीउल अव्वल का ऐलान हुआ है? जी बिल्कुल, ये जिस तरह आपको भी पता है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं, और ये मैं आपको भी और आपकी मीडिया के तवासुत से भी जिस तरह पूरी दुनिया को और पूरे उम्मत मुसलमान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जिस तरह आप अपने कोई भी त्यौहार, ईद का जो कोई भी आप त्यौहार होता है, आप इस त्यौहार को मनाएं, दुनिया को पता चल सके कि मुसलमान एक पुरअमन और मोहब्बत करने वाले कौम है, अपने नबी से मोहब्बत करने वाली कौम है। बिल्कुल, शहरी और दुकानदार खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल को मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। अपने नबी से अकीदत और एहतराम के साथ उनसे मोहब्बत का इजहार किया जाएगा। जी आलिम शेर, बहुत शुक्रिया। जश्न मिलादुन नबी की आमद फैसलाबाद में मसाजिद को सजाने का सिलसिला भी जारी। जामिया मस्जिद सरताज की खूबसूरत अंदाज में सजावट। आशिकाने रसूल जश्न मिलादुन नबी मनाने के लिए पुरजोश हैं, जबकि जश्न मिलादुन नबी की आमद है। मसाजिद को सजाने का सिलसिला भी जारी है। फैसलाबाद की जामिया मस्जिद सरताज की खूबसूरत अंदाज में सजावट। आशिकाने रसूल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए पुरजोश हैं। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि जश्न मिलाद की नबी की आमद है, जबकि फैसलाबाद में
मसाजिद को सजाने का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। वसल्लम की विलादत बासादत के सिलसिले में जहां शहर भर की जो मसाजिद हैं उनको सजाया गया है, इसी हवाले से जामिया मस्जिद सरताज के बाहर में मौजूद हूं, जिसको खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। यहाँ पे जो इलाका मकीन है, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके हाथों में भी जो है वो झंडे हैं और नारेबाजी जो है वो यहाँ पे की जा रही है। उनका भी यही कहना है कि छोटे बच्चों का भी कि जश्न जो मिलादुन नबी के हवाले से अपने घरों को भी सजाएंगे, पूरे चौक चौराहों को भी सजाएंगे और भरपूर तरीके से जो है वो जश्न मिलादुन नबी को मनाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। फिर आप मुझे बताएं कि खूबसूरत तरीके से जो है वो मस्जिद को सजाया गया है, किस तरह जो है वो मिलादुन नबी को आप मनाएंगे? हम जोश व खरोश है इंशाअल्लाह ताला मिलाद नबी मनाएंगे और मना रहे हैं। 12 रोज़ा हमारी मस्जिद में महफिल मिलाद हो रही है। सुबह को 12 रोज़ा महफिल मिलाद हो रही है, सुबह रोज़ाना नए तो नया आलम आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम हमेशा हर साल अपनी मस्जिद को सजाते हैं और मोहल्ले को भी सजाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे कि इलाका मुकीनों का भी यही कहना है कि हर साल जो है वो इलाके को सजाते हैं, चौक चौराहों को सजाते हैं, जिसकी जितनी इस्तात होती है वो इसी हवाले से अपने घरों को बरकी कुमकुमों से जो है वो सजाता है। इसी हवाले से छोटे बच्चों का जोशो खरोश मेरे अकब में देख सकते हैं कि अभी से जो है वो बच्चे अपने हाथों में झंडों को थमाए रैली की सूरत में जो है वो रोड पर निकले हुए हैं, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के शहर भर में स्टॉल भी लग चुके हैं। बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताओ कि किस तरह जो है वो 12 रबीउल अव्वल को मनाओगे? हम बहुत जोर शोर से 12 रबीउल अव्वल मनाएंगे, अपने घर से जाएंगे, झंडे लगाएंगे, मस्जिद से जाएंगे, गलियां मोहल्ले से जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे बच्चों का जो है वो जोशो खरोश दीदनी है। बच्चों का भी यही कहना है कि इंतहाई अकीदत और एहतराम और जोशो खरोश से जो है वो 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाएगा। इसी हवाले से जामिया मस्जिद सरताज को खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सजाया गया है और शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई है। जी तलहा, बहुत शुक्रिया।